Hello dear students, my name is Lakhi Ahuja and I am your EVS teacher for class 4th. In class 4th EVS, we have started learning our chapter number 19, that was Clean House, Clean Village. And today we are starting part 2 of this chapter. प्यारे बच्चों, हमने कक्षा 4 के EVS में हमारा 19वां अध्याय पढ़ना शुरू किया था. इस अध्याय का नाम था क्लीन हाउस क्लीन विलेज, यानी स्वच्छ घर और स्वच्छ गांव. और इस अध्याय का आज हम दूसरा भाग पढ़ने जा रहे थे. So in previous part we were talking about Malti, and Malti was being told by her mother that how keeping things organized is important for us and how cleanliness can become an habit. तो बच्चों, हमने मालती की बात की थी. मालती की मम्मी उसे समझा रही थी कि कैसे चीज़ों को अपनी जगह पर रखना बहुत महत्वपूर्ण है और क्यों उसे हर चीज़ को व्यवस्थित रूप से संभाल के रखना चाहिए. चलिए आगे चर्चा करते हैं. Why cleanliness? So Malti, along with her elder sister, formed a team of her friends. Visiting each and every house, they began motivating people to build toilets and maintain cleanliness. So Malti now came to understand that cleanliness is very important, and she with her elder sister and few friends started making some teams, and that team by all those people started visiting all the houses in their village, and they began motivating people to build toilets and also to maintain cleanliness. तो बच्चों, मालती अब समझ गई थी इस बात को कि सफाई कितनी ज़रूरी है. तो अब मालती, उसकी बड़ी बहन और उसकी कुछ सहेलियां आपस में मिली और उन्होंने एक टीम बना ली. और उस टीम ने क्या काम करना शुरू किया? वो टीम अब गांव में घर घर जाती थी और देखती थी कि हाँ, घर में शौचालय बना हुआ है या नहीं, घर साफ सुथरा है या नहीं. अगर शौचालय नहीं बना होता था तो वो उस घर के लोगों से बातचीत करती थी और उन्हें समझाती थी, उन्हें प्रेरणा देती थी कि क्यों शौचालय बनाना आवश्यक है. और साथ के साथ उनसे ये भी बात करती थी कि सफाई का कितना बड़ा हमारे जीवन में योगदान है या सफाई हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है. Now they told everyone to keep a dustbin in their houses and put all the garbage in it. Yes, what the team did. So they started telling everyone that we should keep dustbin and all the garbage should be placed in that dustbin only. तो उन लोगों ने लोगों को ये भी बताना शुरू किया कि हमें हमारे घरों में कचरा पात्र अवश्य रखना चाहिए और घर से प्रतिदिन जो भी कचरा निकलता है हमें उस कचरा पात्र में ही डालना चाहिए. Then the next thing they told them that the alleys become dirty if you throw garbage in them. Because of this, the whole village becomes dirty. So they also explained people that when you throw the garbage, then the alleys become dirty, and due to alleys all the village looks dirtier. तो बच्चों, उन सब ने बताया कि अगर आप अपने घर से जो कचरा निकलता है उसे यूं ही डाल देते हैं तो सारी गलियां जो हैं वो गंदी दिखती हैं, सारा कचरा इधर उधर फैल जाता है और इस कारण पूरा गांव ही बहुत ही गंदा दिखने लगता है, या पूरा गांव ही जो है वो अस्वच्छ अव्यवस्थित सा नजर आता है. Now dirt spreads diseases, so they also told people that dirt spreads diseases. उन्होंने ये भी बताया कि जो गंदगी होती है उससे कई सारी बीमारियां फैलती हैं. They asked them to empty the dustbin garbage at the place specified for it. Now they also asked people to empty the dustbin garbage only at the place which is specified for it. तो उन लोगों ने गांव के लोगों को ये भी समझाया कि जो कचरा पात्र का कचरा है उन्हें सिर्फ उसी जगह खाली करना चाहिए जो स्थान निर्धारित किया गया है. तो गांव में एक स्थान निर्धारित किया गया था कचरे पात्र का कचरा खाली करने के लिए. तो जो मालती और उसकी सहेलियां थी, जो टीम थी, वो सबको ये समझा रहे थे कि हाँ, कचरे पात्र का कचरा सिर्फ उसी जगह पर ही खाली किया जाना चाहिए. When waste food and leftover items are thrown in plastic bags, animals eat the plastic bags also along with the food and fall sick. So
Malti and her team also told to people that if we throw the food items or the leftover food in the plastic bags, then the animals generally eat those plastic bags because actually they want to eat the food or the leftover item, and because of this those plastic bags are consumed by the animals and it makes them sick. तो बच्चों यहाँ आपको समझना ये है कि मालती ने और भी समझदारी की बातें की। मालती और उसकी टीम ने लोगों को बताया कि जब हम खाने की वस्तुएं या खाने की चीज़ें जो हमारे पास बचती हैं उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में बाहर डाल देते हैं तो कई सारे पशु जो हैं वो उन थैलियों से वास्तव में खाने की वस्तुओं को खाना चाहते हैं, लेकिन वो उसे अलग नहीं कर पाते और पूरी थैली को ही निगल लेते हैं और इस कारण से कई सारे पशुओं को अलग अलग बीमारियां भी होती हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक की थैली है वो हमारे लिए और उन पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। Now, so we should not throw waste food items in plastic bags. So they told them that we should not do this thing. We should never throw these food items in the plastic bags. तो मालती और उसकी टीम ने बताया कि हमें कभी भी खाने की बची हुई चीज़ें प्लास्टिक की थैलियों में नहीं फेंकनी चाहिए। We feel happy when everything around us is clean. So Malti and her team also told the village people that we feel very happy when the things around us are clean. तो मालती ने और उसकी टीम ने लोगों को ये भी बताया कि हम अंदर से एक खुशी का अनुभव करते हैं, हमें अच्छा लगता है जब हमारे आसपास की सभी चीज़ें बिल्कुल स्वच्छ होती हैं, साफ सुथरी होती हैं। Now we are going to talk about trash disposal. So अब हम बच्चों ट्रैश डिस्पोजल की बात करने वाले हैं, यानी कचरा निस्तारण की बात करने वाले हैं। See, Malti's friends made a list of things that are thrown as trash. Then that list was classified into various groups like the following. See, जो मालती और उसकी सहेलियां थी उन सब ने अब एक बहुत बड़ा काम करने की ठानी। उन्होंने क्या किया कि जो भी चीज़ें कचरे के रूप में घरों से निकलती हैं उनकी एक लिस्ट बनाने की सोची। सो दे डिसाइडेड टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स विच आर थ्रोन एज अ ट्रैश एंड देन व्हाट दे डिड, दे क्लासिफाइड दैट ट्रैश इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तब उन्होंने उस सूची में से अलग अलग समूह बनाए, उन सूची में से चीज़ों को अलग अलग किया कि वास्तव में किस किस प्रकार का कचरा घरों से निकलता है। सो फर्स्ट वाज foods that can be fed to animals like vegetable peels, leftover food, etc. So Malti's friends actually came to know that the trash actually includes foods that can be directly fed to animals like the vegetables or the peels of the vegetables or the leftover food items. तो एक श्रेणी जो उन्होंने पाई, एक समूह जो उन्होंने पाया कि कचरे में अक्सर हमारे घरों से, हमारी रसोई से खाने की बची हुई वस्तुएं निकलती हैं, सब्जियां निकलती हैं या सब्जियों और फलों के जो छिलके होते हैं वो निकलते हैं। तो मालती और उसकी सहेलियों को ये लगा कि इन्हें तो हम सीधे ही पशुओं को खिला सकते हैं, तो ये वैसा कचरा होता है जो कि पशुओं के सीधे ही उपयोग आ सकता है। Then the second group was those things that the junk dealer purchases like broken taps, pipes, packaging material, etc. And they thought that these things can be sold to the जंक डीलर डायरेक्टली। तो दूसरा जो समूह था कचरे का, उन्होंने पाया कि हाँ, दूसरे समूह में हम ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जो कबाड़ वाले जो लोग होते हैं, जो कार्य करते हैं कबाड़ को इकट्ठा करने का, उन तक हम पहुंचा सकते हैं, उन्हें बेच सकते हैं। जैसे कि कोई टूटे हुए नल हैं, टूटे हुए पाइप है या कोई ऐसे सामान जो कि पैकेजिंग के लिए, किसी चीज़ को रखने के लिए उपयोग आते हैं, ऐसी सारी चीज़ों को कबाड़ कबाड़ का काम करने वाले जो लोग हैं वो खरीद लेते हैं। Now the third group was things that can be reused like empty bottles, newspapers, old clothes, etc. So Malti's friends also came to know that there is another group of the things which can be reused, and it included empty bottles like newspapers and
क्लोथ्स विच आर ओल्ड। तो उन्होंने ये भी पाया कि एक ऐसा कचरे का समूह भी है जिसे कि पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। और उसमें क्या क्या रखा गया, जैसे कि कोई पुरानी बोतलें हैं, जैसे कि अखबार है रद्दी, और उसके अलावा पुराने कपड़े। तो मालती की दोस्तों ने ये पाया कि ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कि पुनः किसी रूप में उपयोग किया जा सकता है। नाउ other left waste like plastic bags, broken cups, plates, etc. So they also come to know that besides those categories, there is one more group like plastic bags, broken cup, प्लेट एट्सेट्रा। तो उन्होंने ये भी पाया कि इन सारे कचरों के समूह के अलावा जो कचरा बचता है उनमें हम क्या क्या रख सकते हैं, तो कुछ प्लास्टिक के थैले या थैलियाँ, और उसके अलावा कोई टूटे हुए कप प्लेट आदि अगर हैं तो उनको भी कचरे की एक अलग श्रेणी में रखा जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ दिस लिस्ट दे एक्सप्लेन टू एवरीवन हाउ टू डिस्पोज ऑफ trash. So after making this kind of list, they were able to explain to village people that how to dispose of the trash. तो इस प्रकार जब उन्होंने कचरे की सूची को विभाजित कर लिया, उन्होंने कुछ समूह बना लिए, अब वो गांव के लोगों को ये बता पाने में सक्षम थी, वो गांव के लोगों को बता पा रही थी कि हमें कचरे का निस्तारण कैसे करना चाहिए और किस किस प्रकार के कचरे का हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। So Malti and her team did a very interesting and very beneficial task. I hope that you students, you children will also be interested in doing such tasks in your area. So this was all for today, dear students. We will be meeting in the next part of this chapter. Till then, thank you for watching.